वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन्वेस्टमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं, विच टाइप्स इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट थ्रू बीट टू बीट द इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया इज एट 5.1% समथिंग। सो मैं आपको आज बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट्स आपको किस तरह से करना चाहिए। लाइक द चॉइस इज योर्स वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी. So let's get started. So here I have opened a PPT which I will share you in description. So let me show you. स्टार्ट से लेके एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप बार बार देखिए। म्यूचुअल फंड इधर लिखा है, वाई म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, रीजंस आपको बताऊंगा। ये वीडियो फुल फ्रेश म्यूचुअल फंड्स पे है, सो देखिए और सीखिए। This is your investment menu card. There you can see that all the investment schemes are written here. All the investments are written here. Investment schemes in instrument. You can invest in EPF, PPF, Public Provident Fund account, NSC, National Stock in something, FDs and banks and post office, senior citizen savings scheme, and like mutual funds. ULIP, NPS, direct equity, gold, real estate. Tax benefit is in every scheme. If you want tax benefit, then you can choose any scheme from this list. अगर आपको रिटर्न्स हाई चाहिए, जैसे कि मैं आपको बताया 5.1% इन्फ्लेशन का रेट है, तो इस हिसाब से अगर आपको रिटर्न्स चाहिए, सो यू कैन गो विथ EPF, PPF, NSC, FDs and banks, post office. Like you in saving bank account, you don't get interest above 5%. So I don't think saving account is best option to invest. So like if your bank is offering above 6% interest, so then only you can keep your money in bank. Then you can also deposit in fixed deposit, but it hold your money at several times for the tenure. Number of tenures it will hold your money. आपका पैसा इसमें बहुत दिनों तक रुक जाएगा। एफडी में अगर आप डालेंगे, कुछ सालों तक आप निकाल नहीं सकते। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 9% इंटरेस्ट, इसमें भी आप अगर कुछ करना चाहें तो इसमें भी है आपके ऑप्शन। ये सब ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म है। FDs and bank is for short term. Short term FD means 1 year FD. Less than 1 year it considered in short term. So it considered in short term. And then mutual funds. The return in mutual fund is market linked. As the market perform, you will get the return. If the market perform good, then you will get high return. If the market will not perform well, then you will get less return. Short short term and long term. Mutual fund investment is short term also and long term also. Is long term mutual fund you can put ELSS scheme which is for tax saving. जो टैक्स बचाना चाहते हैं वो ELSS स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिसको रिटर्न्स चाहिए शॉर्ट टर्म में तो उन लोग के लिए है SIP है एंड वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट. ULIP is also there, NPS is also there, direct equity, share market, gold, real estate. In gold also you have to see the market where the gold price is going and where the gold price is falling. As soon as the gold price falls, you should hold it. As soon as high, you should sell it. And also same with the real estate. अगर आप लास्ट साल के कुछ पीछे की रिपोर्ट्स देखेंगे रियल एस्टेट की, तो आपको पता चलेगा कि रियल एस्टेट में भी उतना प्रॉफिट आया नहीं है। रियल एस्टेट भी उतना रिटर्न्स नहीं दे पाया है। लास्ट के 5 या 6 साल के स्टैटिस्टिक्स आप देखें तो कॉस्ट ऑफ मनी लाइंग आइडल,
ये एक छोटा सा कैलकुलेशन है, मैं आपको बताता हूँ। मनी इन सेविंग्स अकाउंट, आपके सेविंग अकाउंट में इतना पैसा है, इट्स लाइक 1 लाख। इंटरेस्ट अर्न इन 1 ईयर, आपको बैंक आपका सेविंग अकाउंट आपको इंटरेस्ट दे रहा है 3.5% पर एनम का 1 साल में, 3,500 इंटरेस्ट आपको आ रहा है। टोटल आपका अकाउंट में है 1,03,500। टैक्स ऑन इंटरेस्ट, जो आपको इंटरेस्ट पे टैक्स लगा वो 30.9% है, सो इट्स आपका वो डिडक्ट होगा 1,081 will be deduct. Impact of inflation, as I told you, there it is 5% per annum inflation rate in India, so 5,000 उससे भी कम हो जाएगा। देन वैल्यू आपकी जो साल के एंड में रहेगी वो 97,418 रहेगी, तो इसमें आपका नुकसान है 1 लाख, 1 लाख का आपका हो गया 97,000, 1 लाख टर्न इंटू 97,418, तो एट द एंड आपका नुकसान है इसमें। यू हैव टू बीट दिस इन्फ्लेशन by making investment. Don't keep your money at one place, it will never grow. Challenges involve investing directly in capital market. If अगर आप कैपिटल मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, आपके सामने क्या चैलेंजेस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम, आपको उतना टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ को। एक्सपर्ट्स के सॉल्यूशंस लेने पड़ेंगे, आपके पास उतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए, वोलेटिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। मेन बात, आपको अगर बाय करें, अगर आप कुछ शेयर मार्केट में बाय करें, गोल्ड बाय करें, कुछ भी चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं या जिस चीज़ में यूनिट्स मिल रहा है आपको, तो उस यूनिट्स को आप होल्ड करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न्स आ सकते हैं, तुरंत मत सेल कीजिए। नेक्स्ट, की इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशंस, लिक्विडिटी, you get your money back when you want it. Key investment consideration means give something, get something. So key investments के जो कंसिडरेशन, मतलब आपको कंसिडरेट करके लेना होगा कि लिक्विडिटी, यू गेट योर मनी बैक व्हेन यू वांट इट। आप अपने पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट किए जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े तो आप निकाल सकें। प्लस कन्वीनियंस, हाउ इजी इट टू इन्वेस्ट, disinvest and adjust to your needs। आप सोचिए कि आप कितने इजीली इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, कितने इजीली निकाल पा रहे हैं, कितनी इजीली अपनी इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट कर पा रहे हैं, स्कीम में स्विच कर पा रहे हैं। पोस्ट टैक्स रिटर्न्स, हाउ मच इज रियली लेफ्ट योर पोस्ट टैक्स, मतलब आप ऐसा देखिए कि अब इन्वेस्ट करने के बाद आपको पोस्ट कितना टैक्स भरने को आ रहा है। पोस्ट टैक्स इन्वेस्टमेंट आप कर देंगे, उसके बाद टैक्स भरने कितना आएगा वो देखिए। अगर आपको टैक्स कम आ रहा है देन आपको फ़ायदा है, टैक्स ज़्यादा आएगा तो मतलब नहीं इन्वेस्ट करके। सेफ्टी, यू गेट योर मनी बैक, आपको इतनी तो एश्योरिटी होनी चाहिए। देखिए रिस्क तो हर जगह है, 1% 2% का रिस्क तो सारे इन्वेस्टमेंट्स में है, लेकिन जो बाकी के नहीं है तो उस पर आपको सेफ्टी रहनी चाहिए कि आप तो जब वो मनी ज़रूरत में आए तो आप उसको वापस ले लें, नहीं तो अश्योरिटी होनी चाहिए। व्हाट इज म्यूचुअल फंड एंड व्हाई म्यूचुअल फंड। तो देखिए व्हाट इज म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड क्यों है। म्यूचुअल फंड इज द ट्रस्ट that pools the saving of a number of investors who share a common financial goal. Mutual fund is the trust that pools, म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है जिसमें मतलब लोग भरोसा करते हैं, saving a number of investors who share a common financial goal। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स एक साथ आते हैं और सबका गोल जो है, सबका मकसद जो है, फाइनेंस का मकसद सबको प्रॉफिट या शेयर बुक, मतलब लाइक सॉरी प्रॉफिट बुक करना है।
वो म्यूचुअल फंड्स ये प्रोवाइड करता है कि इतने लोग के सेम गोल हैं जिनको प्रॉफिट की और जिनको इतनी नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट में। म्यूचुअल फंड कहाँ डील करता है, कैसे करता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। एनीबडी विथ एन इन्वेस्टेबल surplus of as little as a few hundred rupees can invest in mutual fund. Anybody with an investable surplus, anybody मतलब कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। ना आपको ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत है, ना आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है, बैंक अकाउंट की खाली ज़रूरत रहती है और परचेज एंड रिडेम्पशन। तो कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है जिसके पास सरप्लस कुछ पैसे पड़े हैं जो उसके बैंक अकाउंट में ऐसे ही विदाउट यूज़ के पड़े हैं, तो वो इसमें डाल के प्रॉफिट या इंटरेस्ट ले सकता है। The money thus collected is then invested by the fund manager in direct types of securities. These could range from shares to debentures to money market instruments depending upon the scheme's stated objective. The money thus collected, जो मनी इन्होंने जमा किया है वो इनके जो एक्सपर्ट रहते हैं, जो फंड को मैनेज करते हैं, फंड मैनेजर लोग जो रहते हैं, वो सीधा जाके सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, दिस कुड रेंज फ्रॉम, वो शेयर मार्केट में लगाते हैं, डिवेंचर्स लेते हैं, एंड देन हाउस प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। जो आप स्कीम में डाल रहे हो वो स्कीम मतलब किस चीज़ में इन्वेस्ट करती है। कोई कोई शेयर्स में डायरेक्ट है, इक्विटी स्कीम है, ग्रोथ है, लिक्विड है। इट गिव्स द मार्केट रिटर्न्स एंड नॉट एश्योर्ड रिटर्न्स। ये जो आपको देगी रिटर्न्स, ये रिटर्न्स एश्योर्ड नहीं होंगे। एश्योर्ड मीन्स कि आपको एक स्पेसिफिक रिटर्न नहीं बताएगी कि हर महीने या हर हफ्ते आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, इतना रिटर्न आपका इतना रिटर्न आपका डन है, इसके ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। इट गिव्स द मार्केट रिटर्न, वो रिटर्न आपका अगर मार्केट वेल परफॉर्म नहीं है तो 6% भी हो सकता है, 7% भी हो सकता है, पढ़ते पढ़ते 10 to 12%, 15% हो सकता है। और वो रिटर्न्स आपको पूरे नहीं आएंगे। जो फंड मैनेजर जो काम कर रहे हैं वो फ्री में मतलब फ्री में तो करते नहीं है, फ्री में नहीं करेंगे, वो अपना रिटर्न हिस्सा काट के कुछ परसेंट, बहुत थोड़ा लेते हैं, वो कुछ परसेंट काट के आपको ये देंगे, मार्केट का रिटर्न ला के देंगे। एंड दे आर वेल क्वालिफाइड इन दिस सिचुएशन, so they can handle all these things at a time: debentures, shares, instruments, market instruments, and then securities, government bonds. In the long term, market returns have the potential to perform better than other assured return products. Long term, market returns have the potential to perform better. लॉन्ग टर्म में आप पैसा लगाएंगे तो आपको रिटर्न प्रोडक्ट एश्योर्ड है, मतलब ज़्यादा ही आएगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में कैसा होता है ना, शॉर्ट टर्म में आप लगाएंगे 1 साल 1.5 साल, तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर भी अवेलेबल रहते हैं, यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो। उसमें आप अपना फंड साइज डालिए, कैलकुलेट कीजिए कितने साल के लिए डाल रहे हैं। 10-15 साल के लिए आप डालेंगे तो आपको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आएंगे। फंड साइज भी अगर आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख रखेंगे तो बहुत ज़्यादा रिटर्न आएंगे, इतना कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड इज द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। म्यूचुअल फंड जो है वो सबसे कॉस्ट एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूटर है जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। मतलब कि इजिएस्ट लैंग्वेज, म्यूचुअल फंड जो है इज द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट, मतलब म्यूचुअल फंड बहुत ही, समझ लीजिए कि सस्ता है। अब मिनिमम 100 रुपीज़ में आपको कोई कोई फंड्स बताऊंगा जिसमें आप मिनिमम 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। मिनिमम 100 रुपीज़ में आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। हर मंथ 100 डालिए या हर हफ्ते 100 डालिए। एसआईपी मत लगाइए, एसआईपी लगाएंगे तो देन यू हैव टू स्पेसिफिक अमाउंट हर मंथ पे करना है। अगर आपके पास मतलब
कि कैसा है, अगर आपको हर मंथ पैसा नहीं आता है, सेवरल डेज पे आता है, तो आप वो लंप सम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो म्यूचुअल फंड्स क्या है, क्या क्या है, आप समझ गए रहेंगे। अगर कुछ भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स, देखिए ये कुछ इंटरेस्टिंग है। व्हीकल फॉर इन्वेस्टिंग इन पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। इन्वेस्टर पूल्स मनी विथ फंड हाउस, ये आप हैं, ये इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर अपना पैसा फंड हाउस में देता है। फंड हाउस आजकल बहुत है, बहुत में मतलब एक्सिस है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, बहुत सारे फंड हाउस है जो म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर का काम करते हैं। फंड हाउस, तो आप अपना पैसा देखिए कि आप देखिए ऑनलाइन चेक किया, आज आज के टाइम पे टॉप फंड हाउस जो है वो एक्सिस है। आप अपना पैसा लेके जाके एक्सिस वाले को दिए 1 लाख। एक्सिस वाला फंड मैनेजर, एक्सिस के जो फंड मैनेजर्स रहेंगे वो इन्वेस्ट करेंगे सिक्योरिटीज बेस्ड एंड कॉमन फाइनेंशियल गोल, मतलब जो भी फाइनेंस बना के देता है शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में, उसमें जाके डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे। आप भी डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं उन चीज़ों में, लेकिन आपको इतनी नॉलेज चाहिए। फंड मैनेजर्स डायरेक्ट उसमें इन्वेस्ट करेंगे और जनरेट करेंगे रिटर्न, वो आपको रिटर्न उसमें से निकाल के देंगे। अब रिटर्न वो हर दिन शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो जल्दी रिटर्न मिलेगा, वो आपको देंगे, पास्ट बैक टू आपको ही आने वाला है रिटर्न। तो ये एक साइकिल की तरह वर्क करती है। पीपीटी में शेयर कर दूंगा, पीपीटी में शेयर कर दूंगा, आप एक बार इसे अच्छे से देख लेंगे तो आप पूरा समझ जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स। यूनिट होल्डर्स, म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ट्रस्टीज, कस्टोडियंस, स्पॉन्सर्स, ट्रांसफर एजेंट। Custodians keep safe custody of the investments, related documents or security invested. यूनिट होल्डर आप होते हैं, आप म्यूचुअल फंड में डाले पैसा। एसेट मैनेजमेंट, एएमसीज रहती हैं, ट्रस्टीज। एएमसीज इज द हेड, तो एएमसीज कंट्रोल्स ऑल द म्यूचुअल फंड एंड ट्रस्टीज ऑल्सो। एएमसीज में फिर आप कस्टोडियन, स्पॉन्सर, ट्रांसफर एजेंट, सारे लोग मिलके म्यूचुअल फंड्स को वर्क करते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। बाय कॉन्स्टिट्यूशन तो क्लोज एंडेड है, ओपन एंडेड है, इंटरवल है। बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इक्विटी फंड्स, डेब्ट फंड, कैश फंड्स। बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इक्विटी फंड। इक्विटी फंड्स में कंपनी आपका जो भी पैसा रहेगा वो शेयर मार्केट इक्विटी में लगाएगी, और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव फिर इक्विटी में लगाएगी, डिवेंचर्स में लगाएगी, कैश फंड में लगाएगी। कंपैरिजन, अदर एसेट्स क्लासेस, म्यूचुअल फंड्स वर्सेस अदर एसेट्स क्लासेस। आप यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन और दूसरे उसके कंपैरिजन। बीएससी के सेंसेक्स जो है शेयर मार्केट वो रेड में है, तो ये है शायद, ये इतना मतलब बहुत नीचे गया है। इक्विटी फंड्स कंपोजिट भी, इक्विटी कंपोजिट सबसे ऊपर है, म्यूचुअल फंड सबसे ऊपर है, गोल्ड नीचे है, उतना रिटर्न नहीं दे रहा है, बॉन्ड्स बहुत ही कम है, वीएससी सेंसेक्स भी बहुत कम है। एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, रिटर्न पोटेंशियल, लो कॉस्ट, लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, choice of schemes, well-regulated tax benefits. Professional management, professional management.
आप इसमें अपना प्रोफेशनल मैनेजमेंट कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, रिटर्न भी पोटेंशियल है, लो कॉस्ट भी है, लिक्विडिटी भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। हाउ डू आई मेक मनी फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स? कैपिटल एप्रिसिएशन, म्यूचुअल फंड, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड में मैं आपको बहुत ही इजी प्रोसेस बताऊंगा। इस प्रोसेस में मत जाइए, पूरा ऑनलाइन जाके दिखाऊंगा कि कैसे क्या करते हैं, किस तरीके से इसमें जाया जाता है। बहुत ही इजी वे है। तो नेक्स्ट वीडियो उस पे होगी कि आप उसमें कैसे इन्वेस्ट करें, क्या करें। So okay, bye. If you haven't subscribed to my channel, just subscribe to my channel, press the bell icon, and as soon as I will upload an video, you will get the notification. And like my video. If you want anything else, just comment me below, and I will make sure to make the video on that topic. So thanks and bye.